Hello, dear friends, and I would like to welcome all of you guys today. And more important case, and today we are going to invite one of the keen prescriber, and he is wonderful in his field. So I invited today Dr. Shoaib Alam Khan sir, and I urge him to discuss one very important cancer case. We all know that everyone can learn from experience. We cannot do experiments and learn from the experiment. But sometimes we got the teachers who has that experience, and they teach us how to deal with difficult situations. Today we have the same situation. It doesn't matter we are student, we are practitioner, we are early learner, or we are well established learner. But we are always learner in our whole practical career in homeopathy. So I'm just waiting for him. He will join us anytime, and I hope you will enjoy today's session because this is the first session we are going to held in Instagram. Hope so you are listening me. Now the voice is clear. So today's session is very, very important. Hope so it's good now. So today one more advanced pathological case, and our guest is Dr. Shoaib Alam Khan, sir. He will join us anytime. He will join us anytime. And during this session, if you guys have any question, anything you didn't understand, I will explain after that. And this session will be in two languages, Hindi and English. I will explain everything in English after the session will done because most of our foreigner listener who didn't understand Hindi. I will explain each and everything in detail. In a very short time, he will be with us, and we will start the session today.
In the meantime, if you have a time, just share this video so everyone can join. I don't know why he is not able to join the session. So here is so today's very important topic for every single person who is joined today, and I request Dr. Shoaib Alam Khan sir to explain his recently treated case. That case is a cancerous case, and it is very advanced pathology. And after that, I will give you all the videos, all the interview of that patient too. But the most important part here is just to learn how to get the symptom in advanced pathological case, because if we talk about organ of medicine give us clue that in it doesn't matter what kind of case is in front of you. It may be a small case, it may be a chronic case, it may be an advanced pathological case. But if you know the way, you can deal every single case in a very simple mode. So today I would like to welcome Dr. Shoaib Alam Khan sir again. So he will with us, and he will ready to teach in every situation, because he has very busy schedule every single day, and on my request he is ready to teach us. Now I'm going to welcome Dr. Shoaib Alam Khan sir, and now he will talk with you guys, and just enjoy. And if you have any question, please don't hesitate to ask, because we all are learner here, and we are here to learn. Thank you, sir. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आवाज मेरी आ रही है? आवाज आ रही है? पहले आपको केस दिखाएंगे। मेरे पास दविंदर, डॉक्टर दविंदर, ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है भाई, हिंदुस्तान का अच्छा एक डॉक्टर है, और चाहता है कि होम्योपैथिक जो है और भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को इंट्रोड्यूस कराता है, जो अच्छे प्रिस्क्राइबर हैं, अच्छे जानने वाले हैं। हम लोग तो अभी भी पढ़ते हैं, सीखते हैं आज भी। हाँ, ये है जरूर अल्लाह की मेहरबानी। जैसे कैंसर केस एक तरह से कंप्लीट क्योर्ड है। ये भी केस देंगे। ये इनका लड़का है, गुजरात का बात है। अभी मेरे और भी मतलब जो आज एक लिकोमिया ब्लड कैंसर है, शायद वो दविंदर जानता होगा, मेरा फेसबुक पे था। तो इरफान पठान नाम था, आज वो 15-16 बरस का हो गया है। वो यहाँ का सबसे टॉप हॉस्पिटल है, ठाकुर पुकुर कैंसर हॉस्पिटल, बंगाल का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का। वहां ट्रीटमेंट होता था उसका, इरफान पठान का, जब वो 7 बरस का था। तो लिकोमिया था, ब्लड कैंसर।
उसको ब्लड चढ़ाया जाता था, केमोथेरेपी चलता था 3 साल तक, 2.5 साल तक उसका चला केमोथेरेपी। तो उसका बाप बोलता था बहुत तकलीफ होता था बच्चा को मेरा, लेकिन बोले बहुत सारे लोग को देखा। तो कोर्स कंप्लीट हो गया 2.5 या 3 साल में। उनका भी इंटरव्यू है मेरे इसमें, यूट्यूब सब में है, फेसबुक में। हम उनसे जब अच्छा भी हो गया था, जब लड़का वो ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, 3 साल तक मेरा इलाज चला, छोड़ दिया था 14 साल का, तो हमने रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया था जब वो लड़का बड़ा हो गया। तो फिर इंटरव्यू कराया हम उनका, वो भी है। तो क्या था, जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो उसके बाद यहाँ चिक्स पर एक ये आ गया था, ग्रोथ। तो ठाकुर पुकुर कैंसर हॉस्पिटल फिर बोला कि ऑपरेशन करेंगे, फिर कोर्स चलेगा केमोथेरेपी का। वो गरम खा गया, बोला अब जो होगा होगा। बहुत तकलीफ उठाया, 2-3 साल 2.5 साल, अब नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि हम लोग के पास यही वे है, आपको देना होगा। वो आदमी ये सब बात कहा है, मेरे फेसबुक में अंदर जाइएगा, यूट्यूब में तो है। हालांकि यहाँ बंगाल में भी यहाँ पर बहुत सा जानते हैं व्यूअर, बहुत से लोग, मतलब होम्योपैथिक में भी ऐसा थे कि नहीं हो नहीं सकता है। तो उन्होंने बहुत सा लोग वहां उसके बाप के एड्रेस पर भी गए, हमने एड्रेस भी दे दिया था, सब वहां हुआ, सब कंप्लीट चेक को करा के ठाकुर पुकुर कैंसर हॉस्पिटल कंप्लीट क्योर हुआ। तो उनके पास भी जब गए थे बहुत लोग, तो वो बेचारे मेरे रिक्वेस्ट पर, फोन नंबर है तो आए। लड़का जब 15 साल का हो गया तो हमने इंटरव्यू कराया, वो लड़का आज खिलता कूदता है, सब कुछ है। तो वो भी हम, जैसा देविंदर ने कहा है, देविंदर मेरा 2-3 तो केस में भी हरियाणा ये सब में था मेरे साथ, तो वो मेरा जानता है। और भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से उसका रास्ता, वो खुद भी बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, केस देखता है, हार्ड स्टडी उसका वे है, एकदम हेनिमेनियन वे है। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं करने की। जो जो कैंसर, हमारा इतना मानना है कि जितनी भी बड़ी पैथोलॉजी है, इवन टू कैंसर, ब्रेन ट्यूमर जो है, अभी हमारा भी आया है खबर 3-4 साल से है, वो बहुत मुस्लिम थोड़ा ऐसा है कि हम बहुत रिक्वेस्ट किया है, एक दफा बहुत पहले दिया था, ब्रेन ट्यूमर था उसको, आज वो अच्छी हो गई है, आज भी दवा जाएगा, 3-3.5 साल हो गया है, एकदम नॉर्मल लाइफ गुजार रही है। हमने उसको बोला भी है कि एमआरआई करा लो, तो लोग करा रहा नहीं। हम देने का बाद भी किया उसके, तो बोला नहीं लड़की है, मेरे व्हाट्सएप में है सब, तो बगैर परमिशन के तो हम नहीं कर सकते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो उनके माँ बाप को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दे। चलिए, आज जो है ये गुजरात का केस है कैंसर का, इसमें डॉक्टर जहीर चौधरी जो है, अच्छा फेमस गुजरात के डॉक्टर है, वो देविंदर जानता होगा, गुजरात में देविंदर का भी सब फॉलोअर है, डॉक्टर जितेंद्र पटेल उटेल बहुत डॉक्टर है, डॉक्टर देविंदर का बहुत सब फैन है, वो लोग फॉलोअर। हम गए थे तो बोले, उतना तक कहा जितेंद्र पटेल ये सब कि देविंदर सर से हमने बहुत कुछ, बहुत अच्छा उसका प्रैक्टिस है डॉक्टर जितेंद्र पटेल का। तो उसने कहा सर हम लोग आपको, मतलब देविंदर के बारे में बताया कि हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, आज हम प्रैक्टिस में, वो मेरा बहुत कुछ देविंदर जी का बताया हुए बहुत काम आया, मेरा आप लोग का भी बताया बहुत काम आया, हम अच्छा सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर है। तो वहां पर वैकनार कोई जगह है, वहां पर गुजरात में डॉक्टर जहीर चौधरी, वो भी बड़ा फेमस है, अच्छा नाम है। वो अभी मेरा केस में अभी वो बयान दिया है ऑनलाइन से, हमने वही, हमको मेरा बहुत चाहने वाला है, जैसे रविंदर चाहता है उसी तरह वो भी चाहने वाला, अच्छा होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो ऑनलाइन से उसने हमको दिखाया था, नाम था इनका है आलू बैन, आलू बैन, मुस्लिम है। तो तो मेरा भी उसका हो गया 3-4 साल, 3.5 साल के, 3 साल के ऊपर ही होगा, 3-3.5 साल होगा। तो केस टेकिन कराया हमको ऑनलाइन से, वो ट्रीटमेंट कराता था। तो
वो अनंत पार्ट में कैंसर है, वो रिपोर्ट में हम अभी दिखाएंगे, सब दिया हुआ है, पूरा डिटेल्स कैंसर का, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट सब कुछ है। तो एक दफा ऑपरेशन हुआ उसका, ऑपरेशन के बाद केमोथेरेपी और रेडिएशन चला कुछ दिन तक, वो सब दिया हुआ है। देने के बाद कुछ दिन के बाद रेडिएशन का, केमोथेरेपी का पहले, फिर रेडिएशन का कोर्स कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद फिर रिलैप्स किया। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको ऑपरेशन कराना होगा। तो वो लोग घर के डिसीजन, उनके लड़के बड़े हैं, उनका इंटरव्यू है उसमें, उन्होंने बोला नहीं। डॉक्टर जहीर चौधरी ने, वहां के डॉक्टर है वेटरनरी के, उन्होंने मेरा नाम सजेशन किया, एक दफा सर को देखा ऑनलाइन से। तो ऑनलाइन से हमने केस टेकन किया, डॉक्टर जहीर चौधरी भी थे और वेटरनरी के हैं वो, और वो मैसेज भी भेजे कि सर हम ही थे, वही हमको कांटेक्ट किया था। तो हमने केस टेकिंग के बाद उनको, गरीब ब्लड होता था बहुत, रुकता नहीं था ब्लीडिंग, तो उन लोग कहा था कि ऑपरेशन होगा, फिर केमोथेरेपी होगा। तो रेडिएशन केमोथेरेपी का कुछ दिन तक ब्लड उलट नहीं हुआ था, ठीक थी, फिर रिलैक्स हुआ। हम तो दविंदर देखा है, मेरा अपना जो तजुर्बा है, जो छोटा मोटा 35-37-38 साल में, हमने नहीं देखा। हाँ, 8 साल 10 साल तक देखा है कि ठीक रहा है, फिर उसके बाद देखा रिलैप्स जरूर हुआ है। 2 साल 4 साल 5 साल, बहुत सा किसी का इम्यून बॉडी रेजिस्टेंस बहुत मजबूत रहा तो ठीक रहा, नहीं तो दिखता है कि रिलैप्स हो जाता है। फिर एक जगह है तो दूसरा जगह मेटास्टेसिस हो गया। हाँ, होम्योपैथिक जो है वर्क करता है बहुत अच्छा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो। एक है, इनसे अभी इजाजत लेना, मनीषा पवार नाम है, वो IAS है उत्तराखंड की, एडवांस कैंसर है उनको। तो हमने उनसे पूछना चाह रहे हैं, चल रहा था एलोपैथिक भी, उनका भी कोर्स बहुत एडवांस, तो अभी बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा साल के ऊपर। तो उनसे बोला है, लेकिन वो थोड़ा अवॉइड करती हैं। तो कुछ कुछ जैसे होम्योपैथिक का तरीका है, जैसे इंडिविजुअलाइजेशन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे हमको कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है या किसी और को है, तो हम जब इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं एक पेशेंट का, एक बीमार का, एक सिक का, तो उसकी बीमारी की भी इंडिविजुअलाइजेशन होती है। हम सर्विस कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ऑफिसर हमको डांटा, गलत काम किया, आप ऐसे नहीं वैसे करने, बेइज्जती किया। तो कोई कोई इतना इगोइस्ट होती है, इतनी खुददार, इतनी जर्ब, इतना मतलब होती है कि वो बेइज्जती के बाद से ही वो बीमार है। क्या है कि देखिए, इंसल्ट फीलिंग या बेइज्जती हुआ, तो जो अगर स्टेप्सिक ड्रग आता है तो उसी क्वालिटी में होना चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी में वो इंसल्ट होना चाहिए। वैसे ही माइंड उसका होना चाहिए स्टेप्सिक इंडिया के। अगर ऑब्स्टिनेटी है तो डिजीज भी ऑब्स्टिनेट होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्टिनेटी? ऑब्स्टिनेटी जो है, या नाइट्रिक एसिड का ऑब्स्टिनेटी, वो आपका ताकत नहीं है कि आप पकड़ सकेगा। वो बहुत खुश अखलाक, मोहब्बत वाला, जाता बातचीत करने वाला, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आपका ताकत नहीं कि उसको इंडिविजुअलाइज कर लीजिएगा। लेकिन वो जब सीट पर आती है तो पता नहीं चलने देगी कि कै दिन से वो भूखी है, खाना नहीं खा, अड़ी हुई, निडिल लाइक, स्प्लिंटर लाइक। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल इरिटेबिलिटी? एक्सेसिव इरिटेबिलिटी, भीतर पर कुछ नहीं है लेकिन उसका बदन में गल रहा है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। यही टफ है इंडिविजुअलाइजेशन।
उसकी क्वालिटी, उसकी इंटेंसिटी। सिंस नेवर वी वर, डॉक्टर साहब पेशेंट को अगर चेहरा देखना होगा कि चेहरा क्या बोल रहा है, दैट इज आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज आर्ट ऑफ केस टेकिंग, आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आप हंसी मजाक समझते हैं क्या कि केस टेकिंग कर लिया, इरिटेबल है, बहुत ही है, बहुत जिद्दी है, ओके नाइट्रिक एसिड या स्टेप्सिकिलिया, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम फालतू। बहुत हम देखा, सब कुछ देखा, कुछ नहीं होगा। अपना फॉल्ट, अपना गलती की वजह से हम लोग फेल हो जाते हैं। अगर इन सेल्फ फीलिंग है, शेम, शर्म, वो पेशेंट कहती है कि डॉक्टर साहब आपको, हमको, आपको सदमा, दुख, ये सब क्वेश्चन जो आप कहते हैं, आपको कुछ लगा ऐसा कभी? बोले नहीं डॉक्टर, ये तो नहीं लगा है, लेकिन एक दफा हमको बेइज्जती हुई, वो निकलता नहीं मेरे दिमाग से, वो डॉक्टर साहब वो निकलता नहीं मेरे दिमाग से। फिर उसके बाद उसका जो चेहरा हमने देखा, कब की बात है, ये हो गया 10-15 साल, जब ड्यूटी में थे, आईएएस ऑफिसर झाड़ा स्टाफ के सामने। तो हम बोला, तो फिर उसके बाद बोले डॉक्टर साहब महीनों, हम तो घर में गए, रोने लगे, महीनों एकदम, मतलब डॉक्टर साहब एकदम कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ना खाना ना पीना ना कुछ, एकदम मतलब भूख ऊख सब बन गई मेरी, भूख ऊख बन गया एकदम। आओ, जब डॉक्टर साहब याद आता ना, उसका चेहरा हमने देखा बदल गया, अनबियरेबल फेस हो गया। तो याद आना भी, वो चीज बेइज्जती, इंसल्ट, किसी भी कंडीशन में हमको हमको एक्सेप्ट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगा। महीनों बाद डॉक्टर साहब खाना पीना कुछ, हस्बैंड इतना समझा रहे थे कि निकल नहीं रहा, हमरा कितना 15-20 हाँ, तो उसके बाद ही थे डॉक्टर साहब, हम हम बोला उसके बाद ही थे बीमारी? बोले नहीं डॉक्टर साहब, ये तो 3-4 साल बाद हम लोग उसके बाद ही ना हुआ। हाँ, तो उसका बोलने का तरीका, याद, अगर वो चीज उसको याद आ रहा तो उसका चेहरा बदल गया। अब बोला अभी भी, बोलो डॉक्टर साहब याद आने तो मैं क्या बोलूँ, मैं डॉक्टर साहब मुझे आंसू आ जाता है। अब फिर वो ऐसे की, देखिए ऐसे, ये आपको निगाह रखना होगा कि वही है कि नहीं, कि सारा नकली माल है, उठाना असली माल। जैसे उसको गीत बोलते हैं कि क्या परिंदा बोलते हैं हमको नहीं मालूम है, क्या बोलते हैं जो लोग समुद्र से निकालता है, बहुत सा देखिएगा न्यूज, जो हम रखा भी थे अपने सामने, चील, क्रेन, क्रेन या चील क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम है, वो जो ऊपर से आसमान से आता, समुंदर से जिंदा मछली एक नंबर माल निकाल के उड़ जाता है, दैट इज होम्योपैथी। समुंदर से आसमान की तरफ वो परिंदा देख रहा है, देख रहा है समुंदर में, कौन सा माल एकदम जिंदा सही माल कौन है, यहाँ पर सड़ा पड़ा नहीं, एकदम मछली बेहतरीन चीज लेके 60 सेकंड ऊपर, दैट इज कॉन्कॉमिटेंट इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द वन ग्रांड सिम्टम ऑफ द पेशेंट। अगर मिल जाता है वही क्वालिटी में, आई एम सिंस नेवर बी वेल आफ्टर दैट, बर्न, हमको बर्न, हमको धूप गर्मी बर्न चलने के बाद या होने का, उसके बाद से हम अच्छा नहीं, हम अच्छा नहीं, सिंस नेवर बी वेल आफ्टर दैट, शॉक, स्ट्रेन, स्प्रेन, सदमा, फ्राइट, सिंस नेवर बी वेल आफ्टर दैट, सिंस नेवर बी वेल आफ्टर दैट। बच्चा में हमको बोला गया था हलवा खाने के लिए, हमारे फादर ने बेइज्जत किया, वो घर छोड़ दिया, आज तक नहीं लिया। तो इंडिविजुअलाइजेशन वैसे ही करना होगा, जो वही निकालना होगा। उसके लिए आपको ऑर्गेनन, एक हाथ में इंस्ट्रूमेंट, बत्ती जला के देखना होगा, एक हाथ में मटीरिया मेडिका
और फिलोसफी ऑफ नॉलेज ये रखना होगा, तब इंडिविजुअलाइजेशन होता है। चलिए आप इधर आ जाइए। आप अब ये केस के बारे में हम बता दे रहे हैं। डॉक्टर जहीर चौधरी का इसमें हमने केस टेकिंग किया। कुछ कुछ जगह में केस टेकिंग में ऐसा भी हुआ है कि हम जहीर चौधरी को और उनके औरत के हस्बैंड को, के लड़के को हम बाहर कर दिए ऑनलाइन, बाहर करके केला दरवाजा बंद करके पूछा है, तब हमको माल मटेरियल मिला है। केस टेकिंग एक अलग चीज है, नहीं तो हैनीमैन कभी भी ये बात ना कहता होम्योपैथी की टोटल आउट ऑफ इट। क्या भाई डॉक्टर देविंदर साहब बोलिए। हाँ राजा, लॉ केस लॉ। अब वो केस देखिए, उनके लड़के का इंटरव्यू सुनिए, और अल्लाह की मेहरबानी से मैं लैंड से मैं उसको आपको कंप्लीट क्योर कैंसर मैं लैंड से दूंगा, आप देखिएगा। सर और प्रिस्क्राइबिंग अल्लाह के मेहरबानी। हाँ हमें बहुत सारे जो बाहर के फॉरेनर्स डॉक्टर्स हैं वो हमें इस टाइम देख रहे हैं। सो आपने जो भी अभी एक्सप्लेन किया है मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, हाँ कर दो फिर आगे। Dr. Shoaib Alam Khan, sir, he explained हाँ इंग्लिश में एक्सप्लेन करो। one situation. One IAS officer is the big post in India, and she has got cancer a few years before, and she has radiations and everything is going on, and after taking case, she Dr. Shoaib Alam Khan, sir, is stuck in one situation because she is suffering from cancer, and most of the time, whenever we are seeing the case, whenever we are individualize the case, whenever we are going to constitutional prescribing, we always focus on the causation. Even if we read Boger's synoptic key, he is clearly mentioned that if you have a evident cause, even in the organon, if you have a characteristic, if you have a very peculiar case, we cannot miss that situation. We cannot miss that symptoms. So during this situation, that person having a very awkward situation in which she has got shame in that situation, but during interviews she said, I cannot forget that situation which I got that indignation feeling. I never forget, but at that time she has a anger, but she cannot express. So this is the main theme, main base of one remedy, that is Steffes Garia. And Dr. Shoaib Alam Khan explained here that if you have an indignation, if you have an obstinate, it should be in similar manner. If it is not similar, you cannot use these symptoms. So in case taking, while you are taking the case, it doesn't matter how you grab the symptoms, but the basic funda in is here in case taking, just to symptom similarity, and more strong the case, more strong the symptoms, the similar remedy is should be in that strong enough. So if the remedy is strong enough, because you have a strong enough symptoms. So this is the situation in which one lady got cancer after indignation, and she never forget that situation, because while explaining his condition, her face expressions are totally changed. Because if somebody
if you guys face this situation and you face that indignation will never be forgotten. So this is the case. Now we are going to explain you the main case in which he the lady is fully recovered from the situation, and she is fully recovered from cancer, and she has they have an interview of that lady. You see that case, and after that I will explain you guys. Thank you. Yes sir. बताए दिखाए। जी सर. हाँ, तुम अच्छा करते हो, उसको एक्सप्लेन कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। लाओ, एक मिनट सुनो, एक मिनट लाइन से सब दिखाओ। पहले उसका इंटरव्यू पूरा, पहले रिपोर्ट दिखाओ, 2 मिनट कैंसर कहाँ दिखा हुआ है, निशान लगा के बताओ। So now we are going to show the report of the patient. Everyone can see these reports, उनको and if you have any question, don't hesitate to ask the question, because if you don't ask the question, we will think that you all are understanding. But if you have a question, please ask. So we have a experienced doctor here. He will explain every single thing. If you have any question. रविंदर, वो जो है केस है, इसमें सब रिपोर्ट सब देखने के लिए। उसके बाद डॉक्टर जहीर चौधरी भी हैं, इनका फोन नंबर भी अगर लोग चाहेंगे तो उनके लड़के का हम फोन नंबर भी दे देंगे, उनसे बात कर सकते हैं। पेशेंट गुजरात में रहता है। अब एक एक करके हम सिर्फ फोकस करेंगे केस के ऊपर सर, जस्ट केस के ऊपर। करो। हाँ, ये देखिए रिपोर्ट है, आप बायोप्सी चेक कर सकते हैं। ये बायोप्सी रिपोर्ट है क्लिनिक। थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, साफ नहीं आ रही। दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। ये रहा, नीचे के पीछे, थोड़ा सा पीछे लीजिए, नीचे। So I will put these all reports after that, and ये देखिए, ये रहा आपका एडिनो कार्सिनोमा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जी जी, ये रहा। और ये आपका सिटी स्कैन है, ये सिटी स्कैन रिपोर्ट है, 17 जुलाई का है। ये आपका डेट देख सकते हैं, और ये सिटी स्कैन रिपोर्ट है 17 जी, 2017 की रिपोर्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं। So this सब डिटेल्स scan report, and after that I will put these reports on my Instagram, so you can all check. ये आपके पेशेंट के सन का इंटरव्यू है। मैं गुजरात से हूँ। मेरा मदर को कैंसर था। मड़ की जगह में एक गांठ हो गई थी, मड़ को आने से रोक रही थी वो गांठ, इसलिए ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मुझे पता चला, मैं राजकोट गया और राजकोट डॉक्टर ने रिपोर्ट कराया। बाद में उसने फाइनल कह दिया कि कैंसर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में ऑपरेशन किया, फिर सेक लिया, डोज लिया, सब खत्म हो गया, और 2 साल वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन 2 साल के बाद फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, और फिर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आप इमरजेंसी में दूसरा ऑपरेशन करवाइए। मैंने सोच लिया चलो दूसरा ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर सोहेल खान का रेफरेंस मिला जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहा है। बाद में मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लेना शुरू किया और दूसरा ऑपरेशन करने कैंसिल कर दिया, और वहाँ से ट्रीटमेंट में ले रहा हूँ लास्ट अप्रोक्स 3 ईयर्स से। अभी मेरे मदर को वो बोले ब्लीडिंग वीक में 1 या 2 बूंद ही आ रहा है। मैंने फिर से पूरे के पूरे लैब कराई, और लैब में अभी वो कैंसर नाबूद है, कोई कैंसर दिखाई नहीं रहा है उसमें। और अभी वो
फुली फाइन है और होम्योपैथिक का मुझे 100% रिजल्ट मिला है डॉक्टर सोहेल खान से। और अब मेरा मदर को कोई दिक्कत नहीं है, 0% कैंसर इन्फेक्शन है। बहुत बढ़िया काम है डॉक्टर सोहेल खान का। So this is the interview of the patient. He is explaining that his mother has a adenocarcinoma, having a multiple cyst, and after that he goes to the diagnosis, and the main problem is that there is a bleeding inside. And when they reach the doctor says we have to go for operation. So they go for the operation. After that, they go for chemotherapy and radiation. And she was fine for 2 years, but after 2 years, the cancer relapse. When that person visit the doctor again, he said, now we have to go for another operation, and we have to repeat the procedure. And somebody gave reference to the Shoaib sir, and after that the treatment goes on for 3 years. Even after 3 years, he did all the reports, every single thing, but and now they said there is no cancer. She is absolutely fine, and we have the interview of that patient too. So we are going to play that interview, and you all see the results. अभी अभी जो वीडियो दिखाएंगे वो एकदम रिसेंट वीडियो है, तो अभी आपको हम शेयर करेंगे। रुबेन, आपकी तबीयत कैसी है? So this is the patient Exactly. in blue clothes. ऐसा बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, ब्लडिंग भी नहीं हो रहा है और कमर में जो पेन था वो भी नहीं हो रहा है, अब He सही हो गया said, सब। now I don't have any problem. उन्हें कैंसर था और डॉक्टर खान से 3-3.5 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं। अभी वो कैंसर का कोई बीमारी है, ये सब नाबूद हो गया है, अभी पूरी तरह से सही है। He said the cancer is fully recovered, and she don't have any problem. So now we are requesting to sir to explain that this Yes, case yes. is very important. Just listen carefully and ask a question. If you have any doubt, please ask question so we can take answer from them. Yes, sir. यस डॉक्टर देविंदर, ये लोग देख लिए, तुमने एक्सप्लेन कर दिया, देख लिए। अब मैं कार्सिनोसिन हमने प्रिस्क्राइब किया, कैसे दिया, क्यों दिया, आई एक्सप्लेन। ये 50, 55, 50, 60 के करीब के एज है। हम तो 3-4 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इनका फर्स्ट हमने कार्सिनोसिन क्यों दिया? पहले केस टेकिंग में, हिस्ट्री में, इनका फैमिली में कैंसर था, फैमिली में, हिस्ट्री में। दूसरा, इनकी लाइफ जो है बहुत अनहैप्पी लाइफ गुजरा है, शौक, सदमा, बहुत सी बातें और फ्राइटनेस, डर, खौफ भी था, बहुत क्रॉनिक डर वर था। अकेला है, एक बच्चा है, बहुत सा परिवार में झमेला उमेला हुआ, आपस में अन्य झगड़ा उगड़ा हुआ। जब ये जवान थी, जब आई थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुत खुशी का लाइफ नहीं, बहुत स्ट्रगल की। एक तरह से बहुत खुशी का लाइफ नहीं हुआ, डर खौफ भी था।
गांव देहात की औरतें होती है तो उस वक्त अपने शौहर को ही सब कुछ समझती है, हस्बैंड को, तो मारा पीटी भी होता है, डर भी होता है, सास ससुर सबका बहुत, वो सब चीज बहुत गांव देहात में, विलेज में पकड़ता है लोग। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का था, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे बेटा उटा बड़ा हुआ, ये हुआ, तो फिर ये सब चीज खत्म हुआ। ये सब चीज था। अदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, फास्टिडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टिडियस ऐसा था, ये तो गांव देहात की लेडी थी, इनको साफ सुथरा तो रहना है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब इनका घर जो है बहुत बड़ा, गांव देहात में जो है अच्छा खेती बाड़ी है, बहुत लंबा चौड़ा, और समझ ये सहन वहन जो है इतना लंबा चौड़ा रहता है गांव देहात में कि मत पूछिए। तो काम करने वाली भी सब रहती हैं, पोछा पोछी भी होता है उनका, हम देखा है। देखिए गुजरात हम बहुत दफा गए हैं, तो 2 दफा वहां गए तो फोन किया था, तो ये लोग आके दिखाए, हमको लेके गए थे। तो बाप रे, महल की तरह लंबा चौड़ा, सब पत्थर लगा हुआ, बड़ा आलीशान, खेती बाड़ी लंबा चौड़ा है। तो वो पहले निकलेंगे साफ, 2-3 तो उसको चेक करती हैं, अपना रूम सब चेक करती हैं, फूलदान, ओगलदान, खांसी का, सर्दी का, ससुर का ओगलदान जो रहता है, सूप, वो सही है कि नहीं, वो प्लेट सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, सब चीज चेक करती है। उनका लड़का का कहना है कि अभी तक तो ओगलदान है, साफ हुआ है, उसमें डिटॉल किधर है, खुजवाए, तो बोले डिटॉल, लंबा लंबा डिटॉल रखा रहता था। किस लिए? बोले जगह पता बदल गया तो बिगड़ी, बोले वहां पर वो पोंछ के उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल दो ओगलदान में। उनके सुन जो है खांसते उससे है, कफ उफ आता है, धो और रखो, जगह पर रखो। चाहे दूसरा जगह हुआ, डाला गया कि नहीं डिटॉल, फिर सुबह अगर भूल गए तो सुबह पूछती है डाला था तुम ससुर के उसमें ओगलदान में ये डिटॉल, वो नहीं मिस होना चाहिए, बदबू करेगा, खराब लगेगा, फिर धो के कैसे रखना है वहां। ये लोग एसी फ्रीज उरीज सब है, लेकिन ये लोग जो है पहाड़ में वाला होता है, मट्टी का जो घड़ा उड़ा, उस समय पानी पीती है ये, उसका नहीं पीती है। तो वो सही है कि नहीं, वहां चेक किया, अगर ढक्कन जो है थोड़ा सा तिरछा है तो उसको सीधा कर दिया। तो बोले अरे डॉक्टर साहब, हम एकदम, उसका लड़का बोला हम आज ही जा जाते हैं। हमने उससे कर ले, अब क्या राउंड मारते, तबीयत ठीक नहीं, राउंड मारती है, इसलिए 24 घंटा होता था राजा। 24 घंटा होता था ब्लीडिंग, तो उसमें ब्लीडिंग मना किया डॉक्टर रेस्ट लेने के लिए, लेकिन उस जाती थी सिर्फ काम चेक करने के लिए, सब ठीक है कि नहीं। पर पर्दा जो लगा हुआ है, कै दिन हुआ, वो उसको चिल्ला चिल्ली करती है, बुआ लोग को 2 दिन हो गया, 1.5 दिन हो गया, या 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन हो गया, उसको धुलाई पुछाई करके पर्दा बदली करो, गेट पे लंबा चौड़ा घर है, सब चीज बदली करो, सब दो, पानी दिया कि नहीं, वो ईचा विचा में बहुत बैठने उठने का जो जगह, वहां ईचा टाइप का लंबा चौड़ा है, उसको देखो, उसको चेक करो। तो फास्टिडियस वर्ड वेरी वेरी बहुत, बहुत से ड्रग है, भूमिका भी आता है, फाइटिंग भी है, फास्टिडियस आर्सेनिक भी आता है, और भी ड्रग। फास्टिडियस ऑफ कार्सिनोसिन, द वेरी, एकदम गोरी पर्सनालिटी है। कैफी कलर होता है, कैफ जो होता है, कैफी कलर, कॉफी वाला ऐसा कलर आता है चेहरे पर, अपीरियंस ऑफ कार्सिनोसिन। और हिस्ट्री
फ्राइटनेस, एकोनाइट का फ्राइटनेस नहीं, ऐसा फ्राइटनेस अनहैप्पी जो भोगते 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 इम्यून हो जाता है। हाँ, डर लगा वो आ रहे, अरे गूगल ने ऐसे कर दिया, चुरा रहे, नहीं तो जरा सा वो देख लिए तो मालूम हुआ कंप्लेन हो गया, गुस्सा गुस्सी हो गया, वो आ रहे, बड़ा चचा आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, अगल बगल तो उम्र तहजीब है, कैसी औरत है, जरा सा बीच नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज करते करते सच ये हो जाता है एक आदत। ये कूटनीस नहीं, एकोनाइट का हुआ डर खौफ, उसके बाद बीमार तकलीफ तो हम थिंक करें, ये ओपीएम सोचे, ये सुन नहीं, वो हैबिचुएटेड हो जाता है। ये सब चलता रहता है, ऐसा लाइफ गुजारते होते मूड में जाता है, अनहैप्पी, बिगड़ गया, नहीं वो उसको देखा ऐसे करके जाए तो ऐसे करके बात कर रही थी, क्यों इस तरह का बात की, मतलब वो उसको जना उना बोलते हैं, वो खेत में काम करने वालों को इस तरह से बात वो क्यों की, ऐसा बात की। तो ये सब का ध्यान रखना और ये करना, स्ट्रगल करना, नहीं एकदम खामोश रहो, आवाज क्यों निकाला, बोले नहीं वैसे वैसे तो तुमको बात कर, एकदम इसमें ऐसे करना चाहिए बात, चेहरा क्यों दिखाया। तो अनहैप्पी लाइफ भी होता है। एंड जैसे आपको गूगल में लिखा हुआ है आर्सेनिक, सॉरी इग्नेशिया, अनहैप्पी लव, बिग लेटर में अनहैप्पी लव, सिर्फ यही वर्ड है, अब बड़ा बिग लेटर है। तो इसमें समझ जाइए कि 2-3 दिन लग जाएगा इसको एक्सप्लेन करने में, इग्नेशिया का अनहैप्पी लव समझने में। और नेचुरल होता है, नहीं कि हमको दुख लग गया फिर बीमारी पकड़, नहीं नहीं नहीं, ये भूल है कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनन जानने वाले लोग इंस्ट्रूमेंट के जरिया, द फिजिशियन जो है उसको सिक को समझना, बीमार को समझना, रिकवर को समझना, ऑब्स्टेकल टू रिकवरी को समझना, ये भूल हो जाता है। अनहैप्पी लव, इग्नेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं वही है, साइलेंट इमोशन पर सब कुछ है, वहां कोई रीजन नहीं है। पार्ट जहां पर स्पेयर ऑफ एक्शन या मार्किंग बहुत है, वो बस यहां पर है। अनहैप्पी लव एक दफा देखिएगा गूगल क्या क्वालिटी में है, उसको समझना में 2-3 रोज लग जाएगा, आपको एक्सप्लेन करने में 2-3 रोज लगेगा, एक ही वर्ड तो पूरा खेल है। साइलेंट कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो रेडियो खोल के एक 16 बरस की लड़की क्या सुनती है, गजल, कौन सा गजल, कौन सा गाना, एक 16 बरस की लड़की इग्नेशिया का कौन सा गाना सुनती है, पुराना मुकेश का गाना, मतलब गजल मेहदी हसन का, ये सब का गजल सुनती, क्यों आजकल की लड़की तो ये सब सुनती है। एक तो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, ऐसा क्यों सुनता है, बार बार अपने गाड़ी में जा रही है वो लड़की, मुझसे पहली थी मेरी मोहब्बत मेरे महबूब नामान, ये गाना क्यों सुनती है। तो लड़की स्मार्ट है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ती है, अच्छी है, गाड़ी उड़ी में जाती थी, गजल सुनती, गजल ऐसा क्यों सुनती, व्हाट कॉज बिहाइंड इट। पाकिस्तानी गजल, मुझसे पहली से मेरी मोहब्बत नामान, मिलेगा फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से जिंदगी बसर कर ली, ये सब ऐसी चीजें, ऐसी गाना ऐसे कहां से डेवलप होता है, क्योंकि वो स्वयं वैसे ही है। एक बच्चा छोटा सो के आंख खोल के क्यों देख रहा है, आधा आपको नींद में है, पूरा स्लीप में है। ये बताना बहुत जरूरी है कुछ बात, ताकि रविंदर जानता है सब, ऐसा बात नहीं, ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट है कि होम्योपैथिक तो वेरी डिफिकल्ट टास्क, आपको पास करने के बाद ज्यादा पढ़ना होगा, हमारे हिसाब से तो 5-7 घंटा तो पढ़ना ही होगा,
जब तक आप मर ना जाए। तो नहीं है हंसी मजाक का बात नहीं है। तो आखिर बच्चा, एक छोटा बच्चा, ये हम नहीं बोलते, ये हम उनका नाम मेरा दिमाग से उतर रहा, हम विलर या स्टेफन फॉर्नर, कि डॉक्टर पूछता है कि अगर 7 बरस का 6 बरस का बच्चा से पूछता है पोलियो माइलिटिस का केस में कि तुम पैसा क्यों जमा करते हो? अरे ये बुक बहुत अच्छा, नाम याद नहीं आ रहा, याद आए तो बता देगा। मैग्नेट ये मैग्नेट ग्रेची है, क्या नाम था उसका, फॉरनर इस क्लाइमेट में। तो पूछी क्यों पैसा जमा करते हो? तो बोले कि अंकल हम जमा इसलिए करते हैं कि मेरा फादर जो है ड्रंकर है, अब मेरा अम्मी हैंडीकैप है, नहीं पैसा जमा करेंगे तो कैसे ट्रीटमेंट कराएंगे, इनका दवा, इनको देखभाल कैसे करेंगे? दैट इज लाइकोफोबिया। वो इतना छोटा बच्चा में भी नजर आएगा, आंख बनाना पड़ेगा, आईज ये बनाना पड़ेगा। जब तक मरीज का एक एक मूवमेंट आप नहीं समझ पाएंगे, आपसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो। चलिए जाने दीजिए, ये हो गया। चलिए आइए इधर, बताना बहुत जरूरी है एक्सप्लेन, कि हमने ऐसे ऐसे वर्ड पर खटा है, साल 2 4 साल 5 साल खटा है, तब हम समझे। हम आज भी ड्रग पर खटा। अभी कुछ दिन पहले ग्वाइकम हमने प्रिस्क्रिप्शन किया, ग्वाइकम हम अभी समझे थोड़ा दिन पहले। वो ज्वाइंट पेन जो होता है, डायथिटिस, ये वो ज्वाइंट पेन में, ये तो होम्योपैथिक, ये तो पैथोलॉजिकल चीज है। आपको ग्वाइकम होगा 90% डॉक्टर, 80% डॉक्टर बोलते वो ग्वाइकम दे देंगे, ज्वाइंट पेन में यंग साइड है, ज्वाइंट फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, नहीं है ग्वाइकम। ये हमने प्रिस्क्रिप्शन देखे अंडर से निकला। तो ग्वाइकम हमको कुछ साल पहले 4 या 3 केस दिया है, जो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस रिजल्ट मिला, जब विंटर से रिजल्ट मिला, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। चले हम ये कर दे, कभी मिलेगा तो देंगे, बड़ा तबीयत खुश हो जाए आपको। होम्योपैथिक क्या है, होम्योपैथिक है क्या बना। चलिए ये हुआ फास्टिडियस। सेकंड, सिंपैथी फॉर अदर्स। वो औरत बहुत सिंपैथेटिक, दूसरे के तकलीफ दुख को नहीं देख सकती है। उसके यहाँ कम से कम 5 7 आदमी 8 आदमी काम करता है, लेडी 4 5 तो काम करती है। जमींदार टाइप का लोग है, खेती बाड़ी होता है लंबा चौड़ा। तो ये लेडीज क्या करती है कि जब ये लोग खाता, औरत लोग तो बगल गांव में रहती है, तो पूछती है, उसका लड़का कहना है टेस्ट टेकिंग के दौरान कि इनको नहीं खाना हजम होगा सर। जब तक वो पूछती हैं कि ए नगमा तेरे यहाँ कितना बाल बच्चा है, तो बोलती है 4, 2 ये, तो वो खाना निकलवा कर उसका दे दी, जाते वक्त उसका भी है उसका भी। अब बोला ये क्या कभी कभी? बोले डेली डॉक्टर साहब, चाहे अपना कम हो जाए हम लोग। अब बोला तो बोले समझाता है कि ठीक है वो काम करती है, पैसा दे नहीं, अनाज भी दे देगी, हम लोग हिस्सा करके। अनाज वहां क्या होता है ना, कि जैसे खेती बाड़ी होता है, तो उन लोग क्या करता है, बटैया बोलता है लोग, वो लेके आधा आधा होता है, दे देता है काम करने के लिए। तो उन लोग का उसी पर गुजारा होता है, गरीबी है, कुछ नहीं बनता है। तो बोले कि क्या करती है, हमारे चाचा उचा बहुत गरम खाते हैं, कि ठीक है तुम देती, तो पूछने में क्या है? बोले ये चुरा के देती है और एक्स्ट्रा, हालांकि वो दे देते हम लोग कि उनका कोई जरूरत है, फिर भी चुरा के बाद में बुला के पकड़ा। तो अम्मी को बोला अम्मी क्या आपका दिमाग घुमाग है, आप बोलिएगा तो अम्मी को बोले नहीं तुम लोग नहीं दोगे। तो ये नेचर था, आके दे देना, गेहूं चावल ज्यादा, ऐसा कोई बात होगा तो हमको बताना, देना।
अपना कहे तो लड़की के शादी हो जाना का अपना जेवर तक ये दे दिए बहू का भी। तो व्हाट डू बाय सिंपैथी फॉर अदर्स? दैट खाली सिंपैथी फॉर अदर्स बोलने से नहीं होगा, तो सिंपैथी फॉर अदर्स होना चाहिए। इसको कॉन्सेप्ट फील करना होगा। अदर वेरी स्ट्रॉन्ग एंजॉय ऑफ थंडर स्टॉर्म, ये मेरा बड़ा फेवरेट फीचर है। अब ऐसा भी हुआ है हमको कुछ नहीं मिला है, सीपिया भी ड्रग आता है, हम एक ही जो एंजॉय ऑफ थंडर स्टॉर्म में हमने कुछ नहीं मिला, हमने प्रिस्क्रिप्शन किया है बच्चा में, लड़की में, यंग में, हमको 100% रिजल्ट मिला है कार्सिनोसिन का। बच्चा को हम खांसी में दिया है, स्किन का प्रॉब्लम में दिया है। एंजॉय थंडर स्टॉर्म, वहां पर क्या बड़ा बड़ा बगीचा, आंगन सब खुला रहता। इनका जब हम केस टेकिंग किया है तो छोटे से हम पूछा तो इनका देवर इनका है, वो भी उम्र दराज है, इनका देवर लगता है। तो केस टेकिंग में हम पूछा, बोले मम्मी बच्चों हम लोग यहाँ तो पर्दा होता, जब बिजली बादल तूफान करता, खूब तूफान बारिश होता है तो इनका चेहरा खुश हो जाता है और अंदर जाती है। तो हम लोग यहाँ मनाहट है भीगने उगने का, लेडीज का ऐसा, लेकिन ये क्या करती है, हम तो देवर है, देवर बोल रहा कि हमको पूरा समझा बता के हमको लेके जाती है पीछे का एरिया में जहाँ खेती बाड़ी होता है, पीछे जगह होता है हम लोग का बड़ा लंबा चौड़ा है, कि कहीं चाचा होता है, सब ससुर बिगड़े नहीं, तो वहां जाके बारिश होता है तो हमको मतलब मना उना के वहां ले जाएंगे। आपको मुझको लगता है कि कितना खुशी इनको मिल गया, अब बैठी नहीं। फिर लड़के से पूछा भी, बोले अभी भी खिड़की उड़की खोल देंगे तो डर में घुसे न बिगड़ जाएंगे लोग, नहीं तो मम्मी का बस चले तो खूब भीगे। हाँ बोला अभी तो बीमार हुआ, बोले अरे डॉक्टर साहब अभी भी हाथ वाथ से खिड़की से खूब ही करते इंजॉय खोल के, हम लोग को तो डर लगने लगता है। इनको तो बहुत मजा मिलता, अभी भी दिल करता कैसे भी इनका चेहरा खुश हो जाता है, लगता है नेचर साफ खुशी जो मिलता है वो फेस से नजर आने लगता है। That is joyful of thunderstorm, light, desire, पसंद, enjoy, खुशी, खुशी, the very important features and character of carcinosin. Also CPR drug है, but carcinosin one of the top drug, and fearful of the thunderstorm, rhododendron. हमने पहले भी explain. These are the features, Dr. Devendra, I prescribe carcinosin and tremendous result. So I will explain what he explained in his case. This is the adenocarcinoma of the case. The most important in this case is the history of cancer. The patient having a history of cancer, and there are lots of fear, frights, lots of things are there. But the most important, very characteristic feature is fastidiousness. He explained that if somebody is fastidious, fastidious is not a simple word. If somebody is fastidious, it should be there in the patient. If you find a 10% of fastidiousness and 90% he is indolent, you cannot select this rubric. So he should be fastidious, and she is very keen. She is checking all the doors, all the windows, all the rooms. That much she is fastidious. And the next and the very important part of this case was enjoy the thunderstorm. The most important, the basic, and the most strong characteristic, peculiar symptom here is enjoyment of the thunderstorm. Most of the people who feared for thunderstorm, most of the people
who don't like the thunderstorm. But in this case, she's like the thunderstorm. She enjoy the foggy weather. She enjoy the rain, because if somebody has a cancer and she says that I'm enjoying whenever there is a change in weather, there is a thunderstorm, there is a strong wind. I totally enjoy that wind. It means this is peculiar. And most of the time, who has advanced pathological cases, they don't want to go outside. They don't want to be disturbed. They always want to stay in one side. But here, he called his brother-in-law, and she said, I want to go outside. I want to see the weather. Even if she is standing in the window, she always put his hand outside and want to be wet. This is the strong characteristic according to the aphorism number 153 in Organon of Medicine. Peculiar characteristic symptom. Here, one person having a relapse of the cancer, having a bleeding, that bleeding is continuously going on, and in that worst condition, she's enjoying the weather. That is a very peculiar characteristic case, symptom of this case. So the remedy was carcinosin, and in carcinosin, the advanced pathological case, adenocarcinoma, is fully relapsed, fully recovered. Now all the reports are reversed, and she is out of cancer. And this रविंदर is the case. रविंदर हमारा जरा फोन होना आ रहा है 3-4 तो हम जी सर. अब ले सकते हैं कि 2 मिनट और रुके आप Yes sir. Yes. ले सकते हैं Yes sir. So हाँ this is the तुम case. एक्सप्लेन कर दो हम इसको जी बंद करें क्या जी सर. जी सर. फोन करना होगा हमको हाँ फोन करना जी होगा सर. तुम एक्सप्लेन कर दो So he is Thank going, and I would like to thank you, sir. So you are explaining a wonderful case here, and ना करेगा so if the cancer is reversed, wait. अब हम करते देवेंद्र थोड़ा फोन आ रहा हमारा फोन Okay, sir. Okay. थैंक यू So this is the case. This is the. I will put all the videos to you, and so we are going to close this meeting, and we will meet you again. Thank you so much.